नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर से स्पीक में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कोरोना से संबंधित विभिन्न पहलुओं की और कोविड-19 से संबंधित आपके जो कुछ भी सवालात हों, आप इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे ये सवालात कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी आप डीडी न्यूज़ लाइव का जो फेसबुक पेज है उस पर आप अपने सवाल कर सकते हैं। हम आपके सवाल हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर से यहाँ पर करेंगे। और आज हमारा विषय है कोविड-19 से संबंधित मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इसके जो कुछ हैं उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी गौतम। Shukriya, Chandrasekhar. Well, as Chandrasekhar mentioned, the specific topic for today is psychological issues in COVID-19, because that's what we saw in the first wave as well, that a range of psychological issues, not just for COVID patients, but for everyone else, due to restrictions and lockdowns and the kind of confines and controls that were put on life in general because of social distancing and other protocol aspects as well. It impacted a wide section of the population, from the elderly to even children. So that is what we're taking up today, and we have our experts joining us as well on that particular subject. But if you have any other health related query, whether it's COVID related or otherwise, in this kind of scenario that the country is facing these days, the world is facing these days, feel free to raise them as well. And let me introduce our guests to you now at this point. Dr. Suchanda Bhattacharjee is with us, Additional Professor, Department of Neurosurgery at NIMS in Hyderabad. We also have Dr. Preeti Sinha, Additional Professor, Department of Psychiatry, National Institute of Mental Health and Neurosciences, that's NIMHANS, in Bengaluru. And Dr. Yasir Islam is also with us. He's Associate Professor, Department of Medicine at the Lady Hardinge Medical College. Welcome to you all. First, Dr. Suchanda Bhattacharjee, if I could ask you, in terms of the second COVID wave, which has impacted the country far more than the first one, what sort of mental issues have you seen cropping up? Are they similar to the ones in the first wave, or the impact more acute on different segments of the population? Compared to the second wave, see, the results will, we can say statistically, once the pandemic is over, and then only you see the burn. Now people are busy with dealing with the pandemic, right? Dealing with the COVID symptoms. But what we see in healthcare workers, like there are a lot of depressive symptoms, there are a lot of fear symptoms, there are a lot of sleep disturbances symptoms, and a lot of stress disorder. Right. Whenever there is a stress, or whenever stress बढ़ती है, as it invites various other diseases, like जिनके बीपी है या जिनके बीपी नहीं भी है, उनका बीपी हाई हो जाता है, जिनके शुगर लेवल्स है वो शुगर लेवल्स हाई हो जाता है। शुगर लेवल्स हाई हो जाने पे कोविड पेशेंट्स को वैसे ही स्टेरॉइड वगैरह चलती रहती है, तो उसकी वजह से शुगर लेवल्स हाई हो जाने से और भी मुश्किल होती है, क्योंकि डायबिटीज itself is a risk factor। तो ये सब चीजें दिखाई देती है। प्लस आइसोलेशन रहते हैं पेशेंट्स को, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, किसी से मुलाकात नहीं होती, तो वैसे ही एक अपने में सीमित रहने में तो मुश्किल होती है। तो इफ यू टेल मी व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स, ये तो जस्ट जब कोविड सिम्टम्स खत्म होंगे, पेंडेमिक खत्म होंगे, तो और अच्छे से दिखाई देगा और अच्छे से स्टडीज आएंगे। बट व्हाट वी हैव सीन इन first wave as well as what we are seeing now, we can see a lot of insomnia, a lot of depression, a lot of stress disorders which are common along with COVID. ठीक है डॉक्टर प्रीति सिन्हा, जिस तरह से डॉक्टर सुचंदा बता रही हैं कि काफ़ी कुछ इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासकर जब पहली वेव आई थी और अभी अभी दूसरी बार जब ये कोरोना का प्रभाव पड़ा है, इस बार का अगर प्रभाव देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रभाव है। तो किस तरह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों पर दिखाई दे रहे हैं, न सिर्फ उन लोगों पर जिनको कोरोना हुआ है या जिनके रिश्तेदारों को, जिनके नज़दीकी लोगों को कोरोना हुआ है, बल्कि उन लोगों को भी जिनको किसी तरह का कोविड का अभी प्रभाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह का माहौल है, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, किस तरह के प्रभाव आपको दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण बात अपने चैनल पे दिखाने का निर्णय लिया।
मेरे ख्याल से जो डॉक्टर सुचंदा कर रही थी उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में कोई भी इंसान शायद इस भारत में और पूरे विश्व में इस कोरोना से संबंधित जो भी मानसिक प्रभाव है उससे बचा हुआ नहीं है। तो आप चाहें तो इसको कुछ तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि जो लोग जिनको पहले से ही कुछ मानसिक परेशानी थी उन पे भी स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उनको जिस प्रकार का साइकोलॉजिकल और दवाइयों के साथ सपोर्ट चाहिए, डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और अगर उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है तो डॉक्टर्स भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको एडमिट नहीं कर सकते और अलग तरह की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जो उनके केयर गिवर हैं, खासकर जिनको क्रॉनिक कोई परेशानी है, तो वो भी इस चीज से बहुत जूझ रहे हैं कि कैसे करें। और आमतौर पे एक पहले वेव में एक हमारे पास एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी कि हाँ हम कर लेंगे, हो जाएंगे। लेकिन ये जो सेकेंड वेव और बहुत भयानक रूप से सामने आया है, उससे एक तरह का सारा जो सोसाइटी है एक थकान सा महसूस कर रहा है कि अब नहीं हो सकता, अब बस करो। तो ये जो है हमारी जो स्ट्रेस लेवल को सहने की शक्ति है उसको और भी कम कर देता है। एक जो फटीग जिसको कहते हैं, जो आम तौर पे कोई भी पेंडेमिक अगर ज्यादा दिन तक चलता है तो। और एक दूसरा जो देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है, मतलब जो जितना ये लोगों को नुकसान कर रहा है, अब इसके साथ अब जो और बाकी चीजें भी आ गई है ठीक होने के बाद भी, तो उससे जो बाकी परिवार हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सोसाइटी और रिश्तेदार ये सब बहुत महत्व रखते हैं। किसी को कुछ परेशानी होती है तो सब मिलजुल कर उसका सामना करते हैं। लेकिन आज अगर आपको है तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा। तो बाकी लोगों को एक फीलिंग कि हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी जो लोगों को बहुत परेशान करिए। एक हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग है कि हम चाह कर भी अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या साथ में है तो बेड नहीं मिल रहा, या कुछ और जैसी परेशानी। तो ये जो दोनों हैं ये पूरे भारत में है, लोग कई तरीके से इससे सामना कर रहे हैं। और अगर आप स्वास्थ्य कर्मचारी को नीचे से लेके ऊपर लेवल तक देखेंगे तो वो जो देख रहे हैं इसका भयानक रूप ज्यादा और मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और जैसे डॉक्टर सुचंता कह रही थी स्ट्रेस डिसऑर्डर की, उस चीज को दोबारा उसके बारे में सोचने से ही जैसे डर लगने लगता है। We'll try and take up these issues. ये डर लग रहा है कि Dr. Sinha, we'll try and take up these issues one by one. In the meantime, we have a caller joining us. बहुत बड़े अरसे पे जहां लोग नेगेटिव प्रभाव से भी हो रहे हैं, ज्यादा नेगेटिव सोच के इसके बारे में। तो it seems that Dr. Sinha is unable to hear us at this moment. किस तरह से हम लोग we'll try and bring in a caller. Ajinkya is joining us from Maharashtra on the phone line. Ajinkya, go ahead, ask your question. आप अपना सवाल करें. हेलो. Yes, go ahead, Ajinkya. सर, मेरा नाम अजिंक्य गुरव है। शुक्रिया आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके चैनल पर। जी, हाँ, आपका सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच में ग्रामीण जो इलाका है, विलेज एरिया, वहाँ पे लोग काफी डरे हुए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि बार बार ये 1.5-2 साल से कहा जा रहा है हाथ धोइए, मास्क लगाए, लेकिन ऐसी कोई और सजेशन है क्या कि लोग डर ना जाए, उनके एक स्पेसिफिक आइडिया आ जाए। लोग काफी टीवी देखने के लिए भी डर रहे, उनका जो हर रोज का डेली रूटीन है वो भी वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि डर कम करने के लिए और कुछ अच्छे से सजेशन, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कोई लग जाता है, जख्म हो जाता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोग डर पैदा ना हो। और एक अच्छी सजेशन, आप लोग अब थक चुके हैं, हाथ धोइए, मास्क लगाइए, एक ऐसा कुछ सजेशन चाहिए जिसमें लोगों के मन में कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ अब कोरोना की स्थिति हैंडल हो चुकी है और आपको एक डाइट, कौन सा डाइट फॉलो कर लेना चाहिए, इलाज जब नहीं। अजिंक्य देखिए, अभी भी जो हालात बने हुए हैं उसमें मास्क लगाना काफ़ी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी ज़रूरी है, हाथों को धोना भी काफ़ी ज़रूरी है।
लेकिन जो डर की आप बात कर रहे हैं, आप गांव के इलाकों की भी बात कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर सुचंदा कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, डर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास सही तरीके से अवेयरनेस नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल इन्फॉर्म प्रॉपरली। मतलब मास्क तो लोग पहनते हैं, एक कुछ लोग होते हैं जो मास्क पहनते ही नहीं है। अब कुछ भी कर लो, आज ही सुबह में बाजार में गए, ये लोग 6 लोग पहने हुए थे, 2 लोग नहीं पहना, तो मेरे को बताना पड़ा कि भाई साहब आप मास्क क्यों नहीं पहने। और कुछ लोग होते हैं जो मास्क पहनते हैं और हम सोचते मास्क पहने हुए हैं, लेकिन मास्क का आधा नाक तो खुला ही रहता है, क्योंकि वो मास्क कैसे यू शेप रहता है वो लोगों को पता नहीं होता है ढंग से कैसे पहनना होता है। प्लस ऊपर से मास्क जो है वो कई बार मतलब अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, तो वो ना पहनने के बराबर ही हो जाता है। बट उनको एक सोशल सिक्योरिटी रहता है कि मैंने मास्क पहना हुआ है। तो एक प्रॉब्लम तो मास्क का यही है। दूसरे प्रॉब्लम जो है गांव में जो है, लोगों को उतना अच्छी जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ हद तक हम खुद ही जिम्मेदार है शायद। जैसे मैं तो ये कहती हूँ कि मीडिया अच्छी चीजें दिखाती है, ग्राउंड लेवल सच दिखा रही है, भयानक स्थिति दिखा रही है, बट एट द सेम टाइम उसको ऐसे पेश करते हैं कि लोग तो डर ही जाएंगे। मतलब उसको थोड़ा ढंग से पेश करना चाहिए कि बोलने के तरीके ठीक होना चाहिए। इतना हमेशा मतलब डरावनी चीजें दिखाते हैं, इतने क्रिमेशन दिखाते हैं, इतने ये ऑक्सीजन नहीं, वो सच है, ये नहीं है, ये नहीं बोल रहे, बट इन सब का एक असर तो गांव में थोड़ा ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन लेवल, जिन लोगों के बीच में एजुकेशन लेवल कम है वो लोग डर जाते हैं, वो लोग एक दूसरे के बात पे भरोसा करते हैं। मैं एक बात कहती हूँ तो वो 10 जने को बताएंगे और 10 जने को बताएंगे, ऐसे बातें फैलती हैं। तो उनको जो ग्राम या गांव में जो लीडर्स होते हैं उनको बहुत बड़े रोल प्ले करना चाहिए। जैसे पंचायत के सरपंच है या देयर इज अ मुस्लिम इमाम और सवान, इनके बातें गांव वाले ज्यादा मानते हैं। उनको अवेयरनेस लाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही करना, क्या गलत करना, क्या नहीं करना। ऐसे अगर हम कर सकते हैं तब जाके वो सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी, तो लोग क्यों डरेंगे? थोड़ा कम होगा, डरना तो है, हम भी डरते हैं, लेकिन थोड़ा कम डरेंगे और सही तरीके से इसको फेस करने का क्या बोलते शक्ति रखेंगे। मेरा कहना तो यही। राइट, अजिंक्य, उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ इस जो डॉक्टर सुचंदा भट्टाचार्य ने सुझाव दिया उसमें आप कुछ अपने गांव में भी, अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, कुछ हद तक इसको प्रसारित कर पाएंगे, इसका प्रचार कर पाएंगे, लोगों तक जानकारी पहुंचा पाएंगे कि किस तरह से डर को कम किया जा सकता है। देखिए, भयावह स्थिति तो है, लेकिन इसको हम अपने ऊपर हावी नहीं होने, वी कैन नॉट लेट इट कंप्लीटली डोमिनेट us, and in fear we cannot become complete headless chickens as well, and that does not help the situation at all. बिल्कुल। और डॉक्टर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इस्लाम, जिस तरह से अभी महाराष्ट्र से भी एक फ़ोन आया था, डॉक्टर सुचंदा भी बता रही हैं, डॉक्टर प्रीति ने भी इस बात को बोला, ये जो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, एक भय का माहौल है, ये किस तरह से कम किया जा सकता है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक कोरोना का भय तो था, साथ में एक ब्लैक फंगस का भी पूरा भय तैयार हो गया है। तो ये सबसे कैसे निपटा जाए? और सबसे पहले आप ये बताइए कि भय अगर होगा, मनोबल अगर कमजोर होगा, तो बीमारी से लड़ने में कितनी दिक्कतें आएंगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो बेसिक अभी जो प्रॉब्लम हम लोग बीइंग ए फिजिशियन, क्योंकि हम डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, तो ज्यादातर जो मरीज हमारे पास आते हैं वो यही क्वेरीज, यही एंजाइटी और यही डिप्रेशन के सिम्टम्स लेके आते हैं। जैसे कि अभी जो एक कॉलर ने अपने एक जो फेयर्स थे उनको एक्सप्रेस किया, तो इस बारे में मैं 2-3 चीजें समझाना चाहता हूँ। एक तो नंबर 1, पहले तो हम ये मान लें कि हम एक पैंडेमिक के बीच में, ये पैंडेमिक सिर्फ आप नहीं, पूरे विश्व को इसने अपने चपेट में लिया हुआ है, और इस पैंडेमिक से हमें लड़ना है जी। उस लड़ने के 2 ही रास्ते हैं। तो हमें इससे बचना है, वो बचने के लिए हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, वो तो हमें फॉलो करना ही है।
क्योंकि अगर वो हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सच में कोविड का एक होने का रिस्क तो रहेगा ही। इसके अलावा जो एक डर है कि क्या हमें कोविड अगर हो गया तो क्या हमारे शरीर के साथ क्या होगा, इस मामले में मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जो कोविड है वो डेथ वारंट नहीं है। जैसे हम हर बार ये बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिनको कोविड होता भी है, चाहे 80 से 85% लोग वो बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक टू माइल्ड होते हैं, उनमें ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, तो वो लोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे इवन अगर कोविड हो भी जाता है। तो पहले तो ये, क्योंकि लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमें कोविड हो गया तो क्या अब हमारी मृत्यु तो नहीं होगी या क्या हम कभी सीरियस कंडीशन में नहीं जाएंगे, तो उन लोगों को मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोविड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बट उसमें डरने वाली बात नहीं है। कोई भी बीमारी, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे और भी जो नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस एक हमारे कंट्री में एंडेमिक बीमारी है, उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ सीरियस हो जाते हैं। अब ये चूंकि पैंडेमिक है, इसमें केसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपके मृत्यु दर बढ़ जाती है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, तो वो एक दिमाग में खौफ दे देता है, वो डर दे देता है, जिसकी वजह से लोग काफी भयभीत हो जाते हैं। दूसरी बात, जैसे कि पहले तो कोविड का डर था कि कोविड, अब ये जो ब्लैक फंगस का डर आ रहा है, इस बारे में 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, ब्लैक फंगस पहले तो ये कम्युनिकेबल नहीं है, जैसे कोविड एक कम्युनिकेबल है, एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है, ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है, वो उसी मरीज को होगा जिसको डॉक्टर इस्लाम हॉस्पिटलाइज हुआ है। डॉक्टर इस्लाम, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, सुनील गोपीचंद जी। पूछिए गोपीचंद जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हाँ जी, नमस्कार सर। आप अपना सवाल पूछे, अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछे। हाँ, नमस्कार सर, मैं सुनील गोपीचंद चौधरी बोल रहा हूँ। देखो मेरा सर, मेरी लड़की है जिसका नाम सुमति है, 5 साल की है वो। आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए जरा, हमें आपकी आवाज 2 बार आ रही है। अच्छा ठीक है, बंद कर दिया, टीवी की आवाज बंद कर दिया मैंने। हाँ, अब सवाल पूछिए। अपना सवाल पूछ जाइए एक बार। मेरी लड़की है, एक तो 11 साल की हो गई, उसको अभी जो बारिश हुई ना, बारिश में भीगने की वजह से उसको सर्दी और खांसी हो गया था। तो मैं दवाइयां लेके आया था, वो तो अभी कुछ हद तक ठीक है। और अभी मेरी उसको इन्फेक्शन हुआ तो मेरी बीच वाली लड़की है, जैसे छोटी वाली, सुमति नाम है उसका, उसको भी फीवर हो गया। अभी उस फीवर और खांसी उसको बहुत तेज है। सर कोई दवाई बताइए ना प्लीज। कहीं बाहर तो हम जाने नहीं देते, अगर जाते भी नीचे मास्क वगैरह लगा के जाते हैं। कुछ दवाई बताइए जिसे मैं उसको दे दे तो ठीक हो जाए सर। आपने टेस्ट करवाया अपने बेटियों का? नहीं, जैसे अभी आज ही हुआ, उसको फीवर और खांसी बहुत तगड़ी आ रही है, फीवर उसको काफी तेज। मेरे ख्याल से तो सबसे पहले आपको टेस्ट कराना चाहिए और आइसोलेट भी उनको करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब बताएंगे तो बेहतर होगा। डॉक्टर इस्लाम, आप इनको बताना चाहेंगे कि इनको क्या करना चाहिए? जी, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर बुखार या खांसी कोविड नहीं हो सकता। पहले तो क्या वो किसी कोविड ऐसे इंसान के संपर्क में आए, क्या उसको कोविड था, या आपके एरिया में कोविड कितना फैला हुआ है, पॉजिटिविटी कितनी है, उस हिसाब से ये डिसाइड होगा कि क्या उनको कोरोना के सिम्टम्स हैं या नॉर्मल वायरल फीवर है। देखिए, कोविड के अलावा भी स्पेशली बच्चों में, स्पेशली जब मौसम में चेंजेस आते हैं तो नॉर्मल वायरल फीवर भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि ये कोविड है। हाँ, बेशक आप टेस्ट जरूर कराइए, कि बिना टेस्ट के कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये कोविड है या नॉन कोविड है, क्योंकि वायरल फीवर के सिम्टम्स सब सेम होते हैं। बाकी जहां तक रही दवाई की बात, जैसे बच्चों में बाकी वायरल फीवर्स में दवाई दी जाती है, बुखार के लिए पैरास्टामोल दी जाती है, अब वही दवाइयां दें कोविड से या इवन वायरल फीवर में कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती, तो आप घबराइए मत। अगर आपके एरिया में कोविड काफी फैला हुआ तो इनके कोविड का टेस्ट कराइए, और नॉर्मल बुखार खांसी की जो घर पे आपकी होगी वो दवाइयां दीजिए। ठीक है गोपीचंद जी, आप एक तो डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं उस तरह से आप पैरासीटामोल या कोई दवा दीजिए, लेकिन
सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कर्फ्यू का माहौल है, हम समझ सकते हैं कि बाहर निकलने में परेशानी है, लेकिन आपका जो भी लोकल हेल्थ सिस्टम वहाँ पर होगा, उनके नंबर आपको अवेलेबल होंगे, आप उनको कॉल करके उनको अपनी सिचुएशन बताइए और कोशिश कीजिए कि आपकी दोनों बेटियों की टेस्टिंग हो जाए। डॉक्टर इस्लाम, ब्लैक फंगस से संबंधित आप बात कर रहे थे, अपनी बात को जारी रखें। जी, मैं उस पर मैं बात करना चाहता हूं कि देखिए, ये ब्लैक फंगस जो है, किसी भी बीमारी होने के कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये नहीं कि किसी को भी कोई भी बीमारी हो जाए। तो ब्लैक फंगस होने के भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब उन्हीं पेशेंट्स को होता है जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके लिए एक तो अनकंट्रोल्ड शुगर, डायबिटीज, जो जिनका शुगर बहुत ज्यादा हाई रहता है, या जिनको हाई डोज स्टेरॉइड्स मिले होते हैं कोविड के दौरान, जो रिकवर हो चुके हैं पेशेंट कोविड वाले, या इवन अभी कोविड में ही अभी मुब्तला हैं, तो उन लोगों को ही होने का रिस्क है जिनके शुगर्स बहुत हाई है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या हाई डोज स्टेरॉइड जिनको मिला है। ये नहीं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, या इवन अगर आपको कोविड के माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो अगर आज आपको हेडेक हो रही है या आपको आंख देखने में कोई परेशानी है तो आपको ब्लैक फंगस होगा। नो, ऐसा नहीं होता, हो सकता है। ओनली थिंग इज, जो आपको ध्यान रखना है कि क्या आप किस कैटेगरी के कोविड में थे, क्या आप हॉस्पिटलाइज हुए थे, आपको मेडिसिन क्या चली थी, उस हिसाब से अपने वो भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, डॉक्टर ही एक है जो आपको बता सकता है कि क्या आपके उसके सिम्टम्स हैं कि नहीं है। बाकी उसका डर इतना ज्यादा हो गया है कि अभी ज्यादातर क्वेरीज हमारे में भी, इवन अगर नॉर्मल हेडेक भी है तो पेशेंट ज्यादातर यही सोचते हैं कि क्या हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। यही मैं समझाना चाहता हूं कि हर एक को ब्लैक फंगस नहीं होगा, सिर्फ जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, जिनका शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल रहता है, या जिनको हाई डोज स्टेरॉइड मिले होते हैं, उन्हीं का रिस्क होना है। ये नहीं कि उनको भी, हर पेशेंट को होगा, उनमें से भी कुछ बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स होंगे जिनको होने का रिस्क रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फेसबुक पे कुछ सवाल आ रहे हैं और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दो सवाल हम ले लेते हैं। मोतीराम जैशी हैं, ये पूछते हैं कि ये कह रहे हैं कि आई एम SLE पेशेंट और दवाइयाँ ये ले रहे हैं, लाइक पेंसोलोन, प्रेडनिसोल डिस्पर्सिबल टैबलेट ले रहे हैं 5 mg की ऑल्टरनेट डेज पे, और फिर HCQS 200 mg ले रहे हैं रोज, और फिर टेलमिसार्टैन IP 20 mg भी ले रहे हैं डेली। और ये जानना चाहते हैं कि क्या इनके लिए अभी वैक्सीन लेना मुनासिब होगा, और अगर वो वैक्सीन लेते हैं तो क्या ये दवाइयाँ इनको उससे पहले डिसकंटिन्यू करनी चाहिए या वैक्सीन लेने के बाद कंटिन्यू रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, इसमें क्या सुझाव दिया जा सकता है? डॉक्टर इस्लाम, आप ही बताइए। जी, देखिए, वैक्सीन तो बिल्कुल आपको लेना है, क्योंकि SLE से मुब्तला है, और वैसे भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, तो वैक्सीन तो 100% आपको लेना है। इस मामले में एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, कई सारे लोग हमें या आपको टीवी पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, वैक्सीन इज ओपन फॉर एवरीवन, हर कोई वैक्सीन ले सकता है। सिर्फ अभी एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में अभी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। लैक्टेटिंग में हमने अब स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने कि लैक्टेटिंग मदर्स ले सकते हैं। सिर्फ एक कंट्रा इंडिकेशन है, वो भी ये है कि अगर आपको किसी वैक्सीन के प्रोटीन से, स्पेशली कोविड वाले से, कोई बहुत ज्यादा सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ हो कि आपको इंजेक्शन देना पड़े उस एलर्जी के लिए, वो जो बहुत ही रेयर होता है, लाइक लाखों करोड़ों में एक केस ऐसा मिलता है। अदरवाइज वैक्सीन लगाने की कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हर कोई वैक्सीन लगा सकता है। वैक्सीन इज टोटली सेफ, स्पेशली जो आप SLE वाले पेशेंट्स हैं, इनको तो डेफिनेटली लगाना चाहिए। और मेडिसिन जैसे आप ले रहे हैं वैसे ही पहले भी कंटिन्यू करेंगे, और वैक्सीन लगाने के बाद भी वही मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे। राइट, थैंक यू। आई होप दैट answers the question that was raised. Now let's go to another caller. We have Chandrabhushan Sharma joining us from Patna. Chandrabhushan जी, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा नाम चंद्रभूषण वर्मा है। बोलिए। हमको कोविड निगेटिव हुआ है 26 अप्रैल को। अच्छा, आपने टेस्ट कराया था? हाँ, टेस्ट कराया था RT-PCR, और उसके बाद निगेटिव होने के 10 दिन के बाद हाथ के कलाई में, ज्वाइंट में दर्द हो रहा है। अच्छा, ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, और वो दर्द हम ये जाना पोस्ट कोविड है या यूरिक एसिड की वजह से है। ओके, डॉक्टर भट्टाचार्य जी, वुड यू लाइक टू टेक अप दिस क्वेश्चन और शुड बी अगेन डायरेक्टेड टू डॉक्टर इस्लाम?
I think Dr. Islam will be the right person, but this much I can say that he needs to get his uric level tested. पोस्ट कोविड माइल्जिया होती है, पोस्ट कोई जॉइंट पेन्स भी होते हैं, बट बहुत इतना कॉमनली देखा नहीं गया। जितने भी रिपोर्ट्स आए हुए हैं कि पोस्ट कोविड जॉइंट पेन्स आर नॉट दैट कॉमन एज देयर आर माइल्जिया, लाइक जैसे मसल पेन वगैरह, फैटिग फील करना इतना। बट फिर भी उनको एक बार यूरिक एसिड लेवल चेक कराना चाहिए, और अगर वो कोविड रिलेटेड है वो कुछ ही दिनों में अपने आप ही खत्म हो जाएगी। Okay, Dr. Islam, would you like to quickly add something? जी, इसमें हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि कितना एक जॉइंट इन्वॉल्व है या मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व है। बट एनीवे, जैसे ये बता रहे हैं, अगर हम उसको ही मान लेते हैं तो कोविड की वजह से यूजुअली तो नहीं होता, बट कई वायरल फीवर्स में पोस्ट वायरल रिएक्टिव आर्थराइटिस भी होता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा इनको वही है, प्रोबेबली जस्ट एक नॉर्मल जॉइंट पेन हो सकता है। गाउट तो लाइकली लग रहा है, क्योंकि गाउट में तो यूजुअली ज्यादातर जो फुट का फर्स्ट जॉइंट होता है, लाइक वो यूजुअली इन्वॉल्व होता है। कलाई में यूजुअली नहीं देखा गया है, बट स्टिल एक अभी आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लीजिए, जैसे एनाल्जेसिक्स वगैरह ले लीजिए। अगर रिलीफ होता है तो कुछ भी नहीं करना, अगर नहीं रिलीफ होता है तो आपको जो नजदीकी अपने डॉक्टर हैं उनसे संपर्क कीजिए आप। ठीक है, हम दूसरे सवालों को लें उससे पहले डॉक्टर प्रीति, अगर हम हेल्थ वर्कर्स की बात करें, जो स्वास्थ्य कर्मी इस वक्त बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हैं, वो जिस तरह का माहौल देख रहे हैं और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जाहिर सी बात है उनकी जो मनोदशा है उस पर भी फर्क पड़ेगा। उस सब को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी मनोदशा दोनों तरह से परेशान कर रही है कि उनको शायद वक्त पे सोना खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, और जो देख रहे हैं वो स्थिति वो सीरियस पेशेंट्स को देख रहे हैं, ना कि माइल्ड वाले उस तरह से। तो चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर चाहे कोई और इंसान हो, सबसे ज्यादा जरूरी है अगर किसी स्ट्रेस या एंजाइटी से लड़ना है कि आपका खाना पीना अच्छे से होना चाहिए और आपका सोना अच्छे से होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज अच्छे से होती रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। In fact, Dr. Sinha, I'm seeing a report where it's even being said that a lot of frontline workers, especially doctors, especially in ICUs, are haunted by the sound of heart rate monitors that doesn't let them sleep. Right. So that's what I was trying to say, that it's obviously possible that they have seen so much of the things, and as I said, the helplessness is a kind of thing which is prevalent in doctors in a different way. So if they are not able to have adequate sleep, or these anxieties are causing a problem, I think they should not delay it and try to consult a mental health specialist, psychiatrist or a psychologist, and try to find out, because if it is dealt in an early period, it can be definitely useful. Also because you are dealing with patients, so your positivity also makes a difference to them. So, and as far as we psychiatrists are concerned, we are trying to see if we can help our fellow beings, and in this. Nonetheless, I am sure that the hospital where they will be working would try to get someone on the board to help them out, because this is, especially in the last 1 month, has become a difficult issue for the Right. Another category that is found to be struggling in this second wave particularly is the case of the elderly, and we'll talk about that as well. But we have a caller joining us from Bhopal. Shailesh Kumar Sinha है हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेश, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। सर, मैं 1 तारीख को कोविड नेगेटिव हो गया था और घर में ही मेरा ट्रीटमेंट रहा, कहीं बाहर नहीं गया। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा लंग्स के लिए मैं चेक कराया, तो एक्सरे कराने के बाद मुझे थोड़ा सा एक दवाई खाने के लिए रोज दिया, और मैं सोराइसिस का भी पेशेंट हूँ, जो मेरा स्टेरॉइड में रेगुलर लेता हूँ। तो वो स्टेरॉइड और ये दवाई से मेरे दवाई कौन सी है? ये स्टेरॉइड मेथोट्रेक्सेल ऑनकोटेक्स। ओके, ये स्किन के लिए लेता हूँ, मैं रेगुलर लेता हूँ ये। तो मैं
मतलब 2-3 साल से ले रहा हूँ। तो मेरे को अभी जो ये इसके लिए लंग्स के लिए जो दवाई दे रहे हैं उससे वो बढ़ रहा है। लंग्स के लिए कौन सी दवाई दे रहे हैं आपको? लंग्स के लिए मैं एक सेकंड में आपको देख के बताता हूँ कि कौन सी। नहीं, जो लंग्स के लिए आपको दवा दे रहे हैं उसकी वजह से क्या लीवर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है? नहीं, लीवर का प्रॉब्लम नहीं बढ़ रहा है, मेरा सोराइसिस बढ़ रहा है सर। सोराइसिस बढ़ रहा है, दैट्स अ स्किन इशू। स्किन इश्यू। बट आप दवाई का नाम जरा हमें बता देंगे तो बेहतर रहेगा कि कौन सी आपकी दवाई आपको फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए दिया जा रहा है। ये है एल्बुमर। ये Dr. Islam, were you able to get the name of the medicine? Can you correlate? दवाई का नाम देखिए इनके दवाई का तो खैर समझ नहीं आया, बट अगर इनका सोरियासिस फ्लेयर अप हुआ है, या देखिए मेडिसिन का तो खैर जो इन्होंने लंग्स के बताया वो मैं ठीक से समझ नहीं पाया कौन सी दवाई ले रहे हैं। बट हाँ, यदि इनका सोरियासिस फ्लेयर अप हुआ है तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अपने जो आपके स्किन के डॉक्टर हैं जिससे भी आप दिखा रहे हैं, आप उनसे जरूर संपर्क करें, क्योंकि सोरियासिस को फ्लेयर अप होने के कई जी, यानी कि शैलेश कुमार जी, थोड़ा सा डॉक्टर साहब से इस वक्त ठीक से थोड़ा सा वहाँ पे नेटवर्क का दिक्कत है, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने जो स्किन के आपके डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर इस बारे में एक बार कंसल्ट कीजिए, उनके पास जाइए और बात कीजिए। और एक दो सवाल और हम सोशल मीडिया से लेने की कोशिश करते हैं। सुषमा सिन्हा हैं, ये पूछती हैं कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद मैं होम क्वारंटीन हो गई थी, लेकिन अब ठीक हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी आँख की रोशनी बहुत ही कम हो गई है, इसका कोई उपाय हो तो बताएं। डॉक्टर सुचंदा। हाँ जी, सिर्फ कोरोना के बाद सिर्फ आँख की रोशनी कम हो गई तो उनको तुरंत जाके तो कोई आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दिखाई दे रहा है कि फंगस इज क्वाइट अ कॉमन थिंग है। तो इसको ब्लैक फंगस नहीं कहूंगे ऐसे, बट क्योंकि ये एक सिम्टम दिखाई दे रहा है कि पीपल आर प्रेजेंटिंग आइदर विद फेशियल पेन या आँख का रोशनी चले जाना, मतलब आँख का रोशनी कम दिखाई देना में अगर फंगस है तो वो थोड़ा सीवियर डिग्री में ही चला गया तो उनको तुरंत जाके डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, या तो मेडिसिन वाले डॉक्टर या कोई आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर सीटी स्कैन वगैरह करना चाहिए, करने से पता चलेगा कि फंगल इन्फेक्शन हुआ या नहीं। आप उनको कितना दिन स्टेरॉइड दिया गया, वो डायबिटिक है नहीं है, अगर वो सब है और जस्ट कोविड के बाद ऐसे हुआ तो उसका सस्पिशन काफी मात्रा में हाई रहता है। ठीक है, अगर वो सब नहीं है, वो नॉर्मल ऐसे नॉर्मल यंग कोविड कितने हैं उम्र, वो सब वेरी करता है, बट तुरंत उनको एक फिजिशियन कंसल्टेंट लेना जरूरी है, क्योंकि अगर फंगल है जो मेरे मन में फर्स्ट आएगी ये सिम्टम में, तो उसकी तुरंत इलाज भी शुरू करना जरूरी है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, वंदना नासिक से, महाराष्ट्र से। वंदना, सवाल कीजिए अपना। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी मदर को वैक्सीन लगाने के एक हफ्ते के बाद वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट हुई सर, तो उनका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया है और बाद में फिर उनको शिवरिंग वगैरह का प्रॉब्लम हुआ तो फिर चेक कराया तो टाइफाइड भी हुआ था। तो बाकी सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन अभी उनको मतलब थोड़ा सा आंखों में दर्द भारी लग रहा है और डायबिटिक तो वो नहीं है, लेकिन बॉर्डर लाइन थोड़ा शुगर उनका 125 एंड 160 के रेंज में है और आंख दर्द क्यों हो रही है, तो हमने टेस्ट भी कराया तो डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनको स्टेरॉइड का डोज लाइक 9 डेज को दिया था फॉर 7 डेज। तो यही है कि ब्लैक फंगस से रिलेटेड कुछ कंसर्न तो नहीं है सर? डॉक्टर इस्लाम जी देखिए, जैसे इस प्रोग्राम में भी हम देख रहे हैं ज्यादातर क्वेरीज इस ब्लैक फंगस को लेके ही आ रही हैं, तो मैं 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं इस प्रोग्राम में। देखिए, यदि आपके रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, रिस्क फैक्टर से मेरा मतलब कि आपका शुगर अनकंट्रोल्ड, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल, कि आपका 300-400 या HbA1c मोर देन 9 रहता है, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी जैसे आपको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आप कोई ऐसी दवाइयों पे इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे हैं, या फिर आपको हाई डोज स्टेरॉइड्स मिले हैं, यदि ये चीजें नहीं हैं
तो आपको ब्लैक फंगस होने का रिस्क नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। और स्पेशली अगर आप घर पे ट्रीटमेंट हुए हैं, आइसोलेट हुए हैं, तो उनको तो बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर रिस्क कहूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं जिनको ऑक्सीजन मिलता है और जिनको हाई डोज स्टेरॉइड्स मिलते हैं, उन्हीं का रिस्क बढ़ता है ब्लैक फंगस होने का। तो ये सबके मन में ये इस टाइम ये डर है कि जो एक नॉर्मल हेडेक या नॉर्मल ब्लरिंग ऑफ विजन या देखने में कोई परेशानी, कहीं वो ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो मैं ये एक फेयर को खत्म करना चाहूंगा इस माध्यम से कि देखिए, ब्लैक फंगस होने का कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में हम बार बार हर जगह यही कह रहे हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, हाई डोज स्टेरॉइड्स, हॉस्पिटलाइज होना, हाई ऑक्सीजन मिलना, यही एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं मिली हैं, माइल्ड स्टेरॉइड से भी ब्लैक फंगस होने का रिस्क नहीं रहता। यदि आपको लो डोज स्टेरॉइड दे भी दिए हैं तो कोई रिस्क नहीं है आपको। ठीक है, ओके। इसी से संबंधित एक सवाल है चंद्रशेखर, हम फेसबुक पे ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, आशुतोष के झा wants to know, Dr. Islam, how much time is considered as prolonged use of steroids, and do we need to worry about side effects if physicians have prescribed the doses of steroids? And इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि डोजेज भी इसका कितना अहम पहलू है। See, this is what I want to clear here, because what people are doing is they are following a treatment which has been forwarded to them like through WhatsApp or through social media, and they are blindly following this treatment. So what I would say is, first of all, whenever you get any COVID related symptoms or any COVID confirmed case, you should always consult your physician. He's the best person to guide whether the steroids need to be started to you or not. Just broadly telling, if your oxygen level is more than 94, then probably steroids are not indicated for you. Regarding the black fungus part and regarding the steroid thing, see, steroids given in low doses that does not compromise your immunity, and if it is given for a shorter duration, 6 milligram dexamethasone for 10 days, that is what is recommended in COVID, does not increases the risk of black fungus. It is the higher doses of steroids, which sometimes are given to save the patient's life, that increases the risk of black fungus. Otherwise, the usual doses which are given does not increases the risk of black fungus. Okay. ठीक है डॉक्टर प्रीति, अगर अभी जिस तरह से हमने हेल्थ वर्कर्स की बात की थी, उसी के साथ साथ कहीं न कहीं फ्रंट पे जो पुलिस के जवान हैं, चाहे वो विभिन्न राज्यों के पुलिस के जवान हो, वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं। चाहे वो कर्फ्यू की बात हो या उसके बाद किसी कोविड पेशेंट की डेथ हो जा रही है तो उसके अंतिम संस्कार करने तक वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल कंडीशन है, क्योंकि वो घर पे जाते हैं, उनके परिवार के लोग, ये सब जो मेंटल कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं उनको भी प्रभावित कर रही है। क्या कुछ इसमें आप कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहूंगी। उसके पहले जस्ट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो उसके पहले एक कॉलर ने अपनी माँ के बारे में बोला था। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर इस्लाम ने बताया कि वो बहुत अनलाइकली है कि वो ब्लैक फंगस होगा, लेकिन उनमें इस तरह का डर ज्यादा आ जाता है और शायद उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया है। तो मेरे ख्याल से उनकी जो बेटी या जो रिश्तेदार थी, उन्होंने फोन किया, उनको अपना एक संयम रखना बहुत जरूरी है और उनका माइंड डाइवर्ट करना कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जो नहीं दिख रहा है वो ठीक हो जाएगा। और जितना वो एक या दो डॉक्टर के बाद जितना ज्यादा दिखाएंगे, तो ये चीज हमने पहले वेव के बाद भी देखी थी कि कुछ हुआ है और उसके बाद बस कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है कि नहीं, हमें शायद ये तो नहीं हो गया, कोविड के बाद ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, और खासकर बूढ़े लोगों में। तो जो आसपास के रिश्तेदार हैं या जो कॉल कर रहे हैं, वो कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और कितना इन जनरल कोशिश करते हैं नॉर्मल माहौल को बनाने के लिए, वो भी हेल्प करेगा शायद उनको अपनी ये छोटी मोटी जो चीजें जो डॉक्टर ने कहा भी है कि वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, उस पे ना ध्यान देके बाकी चीजों पे ध्यान देनी। Okay, I'll come back to this point of the elderly, but we have a caller. Let's quickly try and get his query here as well. Dharmesh has joined us from Madhya Pradesh. Dharmesh, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो सर। हाँ, सवाल कीजिए प्लीज। मैं रमेश बोल रहा हूँ सर। मेरे को लगभग 24 अप्रैल को कोविड हुआ था
तो मैं घर पे ही सही हो गया, एकदम फिट फाट हो गया था। मतलब मेरा 4 से 5 दिन के अंदर बुखार खत्म हो गया था। लेकिन 2-3 दिन के लिए मेरे को स्टेरॉइड दिया गया था, जो कि 32 mg 3 दिन दिया गया था, और फिर उसके बाद 16 mg 2 दिन दिया गया था, फिर 8 mg 1 दिन दिया गया था। ओके। तो उसके बाद सब मेरा बंद हो गया था, पूरा सब एकदम ठीक ठाक हो गया। मैं अभी ठीक ठाक हूँ और एकदम रेडी भी हूँ, सब कुछ है। सब थोड़ी सी एक प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, लेकिन ये हो सकता है मेरी साइकोलॉजी वाला प्रॉब्लम हो। मेरा सर नाक दोनों फ्री है, अनुलोम विलोम करता हूँ, नाक इधर से हवा लेता हूँ, उधर से छोड़ता हूँ, मेरे दोनों कान भी सब कुछ सुनाई देता है। लेकिन मन में ये रहता है कि मेरे को जो है सर नाक सब जो है भारी भारी लग रहा है, या नहीं ठीक है रमेश जी आपकी ये समस्या बिल्कुल ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक समस्या है। डॉक्टर सुचंदा। हाँ जी, हेलो जी डॉक्टर सुचंदा, दरअसल हमारे साथ एक कॉलर अभी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, उनको कोविड हुआ था, वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उनका ये कहना है कि ठीक होने के बाद उनको एक भ्रम टाइप का रहता है कि उनके नाक में कोई सनसनी होती है इस तरह का, बाकी उनकी नाक खुली हुई है, सब कुछ ठीक है। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसको कह सकते हैं। हाँ, वो तो डर के वजह से ही ऐसा हो रहे होंगे ना। तो मैं तो ये कहूंगी कि उनको जब पता चल ही रहा है कि उनका कुछ है नहीं, उनको लग रहा है कि ऐसे हो रहा है, जबकि उनको खुद को ये भी महसूस हो रहा है द पॉजिटिव थिंग दैट उनको सांस लेना आ रहा है, कान खुला है, सब कुछ मैंने सुना उन्होंने क्या बताया। तो उनको अपना अटेंशन डाइवर्ट कर, जब भी उनको ऐसे कुछ थॉट्स आती है तब उनको वो डाइवर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। धीरे धीरे ही विल गेट ओवर इट एंड देन ही शुड बी एबल टू गेट ओवर इट एंड देन फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। और उसके बारे में कुछ इलाज है तो वो शायद डॉक्टर प्रीति विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू से अबाउट दिस व्हाटएवर साइकोलॉजिकल इशू ही इज हैविंग। Okay. I think a good solution will be that he diverts his attention. रमेश जी, आप ज़्यादा उस समस्या के बारे में जो आपको लग रहा है कि आपको है, ज़्यादा सोचिए मत, और अन्य चीज़ों में अपना, जिनमें आपका मन लगता है उनमें अपना ज़रा ध्यान बांटने की कोशिश करें। और खुश रहिए कि आप ठीक हो गए। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी तो यही होनी चाहिए। और इसके साथ ही डॉक्टर सिन्हा, यू मेंशनिंग अबाउट द इशू विद एल्डरली। नाउ देयर इज a study that was done by a particular NGO, and they found they surveyed and spoke to about 5,000 people, the elderly, and they said that 63% reported developing symptoms of depression. Now, one thing with depression is that one is also in denial. So, could you share something with viewers where if they have elderly people in the house, and how can they make out in the first place that the elderly are depressed, and then perhaps they could seek help? और हमारे पुलिस कर्मियों के लिए भी आप जो सवाल पूछा था उसको भी इसी के साथ में उसका जवाब भी दे दीजिएगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन मैं फिर भी जो वो मरीज थे, उन्होंने बोला है तो आप लोग ने जैसे कहा वो करना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा डर नहीं जाता। तो अगर ऐसा होता है कि 1 महीना हो गया उसके बाद भी ऐसा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर वो आसपास किसी मानसिक डॉक्टर से या सलाह कर लेंगे तो शायद थोड़े दिन की कुछ उपचार से हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि वो चीज धीरे धीरे कम हो रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है, वो डिसाइड करेगा कि इनको और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए कि नहीं। और प्रोग्राम वैसे देखें जिसमें डॉक्टर बता रहे हैं कि क्या ब्लैक फंगस नहीं हो सकता है, जैसे डॉक्टर इस्लाम ने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि क्या नहीं है, क्या हो सकता है, ना कि वहां पे देखें कि कितने लोग को हो गया है और वो सारी न्यूज पे ध्यान दें। तीसरा, जो आप ये बूढ़े लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2-3 चीजें हो जाती है इसमें कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनको एक तो ये लगता है कि जो उनके पास शायद कोई हो ना हो जिनसे वो कांटेक्ट करके बात कर सके कि उनको क्या लग रहा है। तो अगर उनके जो आसपास रिश्तेदार हैं वो अगर लगातार बात करते रहेंगे तो पता चलते रहेगा कि उनको कुछ डिप्रेशन जैसी सिम्टम्स हो रही है, और वो छुपाना भी चाहते हैं कि क्या बेकार का दूसरे को परेशान करूं। सबको तो वही परेशानी हो रही है, पर अगर किसी को जरूरत से ज्यादा हो रही है, जैसे
नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, या कितना भी कोशिश कर रहे हैं, जो एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आज की डेट में सबको है, लेकिन मैक्सिमम लोग उस पर कंट्रोल कर भी पा रहे हैं, पॉजिटिव सोच भी पा रहे हैं। लेकिन अगर वृद्धों में हो सकता है अकेलेपन के कारण या ऑनलाइन या इंटरनेट से बहुत ज्यादा जुड़े ना होने के कारण, अगर ये चीजें ज्यादा है, नहीं नेगेटिव कंट्रोल कर पा रहे हैं, या किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं, और अपनी जो बाकी बीमारियों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या ध्यान देने के बाद भी वो बढ़ रहा है, शुगर हो या ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये नजरअंदाज करेंगे तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा, जिसको हो सकता है अभी कोविड के कारण डील करने में मुश्किल हो, लेकिन अगर वो छोटे अरसे पे रहेगा तो उस पर ध्यान देकर कम किया जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर कुछ वहां पे आसपास में लोग हैं जो कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, हम लोग ने देखा है, हम लोग ने अपने यहाँ कोशिश भी करी है बूढ़े लोगों के लिए, कि अगर वो दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा भी कुछ किसी तरह से भी सोशली हो पाते हैं, तो उससे उनका ये एंजाइटी और डिप्रेशन काफी कम हो जाता है, ना कि दिन भर सामने टीवी में बैठकर वही सारे समाचार देखना। तो एक अपनी वो चीज है जो उनको हेल्प कर सकती है। और अगर अपने शरीर के बारे में इन जनरल बहुत सारी घबराहट हो रही है, तो फिर उसको सिर्फ आप ठीक हो जाएगी आप सोचिए नहीं। अगर उससे नहीं काम चल रहा है तो मेरे ख्याल से सलाह लेना बेहतर होगा। ऑनलाइन आजकल बहुत सारी जगह उपलब्ध है कि आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। Certainly, that would be a good way to go. लेकिन उनसे बातचीत करना एक बहुत अच्छा तरीका होगा उनको हेल्प करने का। Right. Let's bring in a caller who's been waiting for a while. Jagdish is on the phone line. लखनऊ से वो हमें फोन कर रहे हैं। जगदीश, अपना सवाल करिए। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर सुई लगवाने जा रहे हैं कोविड का, तो उसमें क्या क्या सावधानी बरते हैं, और अगर बुखार है, अगर जुकाम उखाम है, तो इसमें सुई लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं? डॉक्टर इस्लाम, देखिए, जब आप वैक्सीन लगाने चाहते हैं तो पहले तो यदि आपको बुखार ऑनगोइंग हो रहा है मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा डिले कीजिए, क्योंकि ये बुखार हो सकता है कि आपको कोविड की वजह से भी हो रहा हो। तो पहले तो अपने आप को टेस्ट करा के ये कंफर्म कीजिए कि कहीं आपको कोविड तो नहीं है। तो बुखार के टाइम में हम इसलिए थोड़ा मना करते हैं कि आप वैक्सीन मत लगाइए। बाकी आपको प्रिकॉशंस पहले भी वही लेने हैं और बाद में भी वही लेने हैं, जैसे कि आपको मास्क पहनना है जब आप सेंटर में जाएंगे, क्योंकि वहां पे हो सकता है ओवर क्राउडिंग हो, तो वहां पे आपको मास्क पहन के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई आप दवाइयां खा रहे हैं तो दवाइयां नहीं रोकनी है। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि कई सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हमें खून पतला करने वाली दवाई रोकनी तो नहीं है, हार्ट की या शुगर की दवाई तो नहीं रोकनी है। बिल्कुल नहीं रोकनी है। जो आपकी दवाइयां आपकी चल रही हैं वो उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट जिस दिन आप वैक्सीन लगाने जाएंगे, जो आप डेली डोज खाते हैं वो दवाई वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। और वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है आपको हल्का सा बुखार आए, जहां पे वैक्सीन लगाया वहां पे थोड़ा सा पेन हो, तो उसके लिए नॉर्मली हम पैरास्टामोल वगैरह जो लेते हैं वही लेना है। और उसके बाद भी आपको जो दवाइयां पहले ले रहे थे बाकी बीमारियों के लिए वो दवाइयां कंटिन्यू करनी है। और वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, मास्क पहने रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो ये आपको हमेशा करना है। We have a question related to vaccination itself, Dr. Islam. Shifali Vats Bhardwaj is asking that her husband is 39 years old and is allergic to ibuprofen and Disprin, and even allergic to iron through IV. Now, should this sort of person take any sort of COVID vaccine? Yes, he can take. There is no contraindication to vaccination if he is allergic to any medication. The only contraindication, as I mentioned before also, was if there has been any severe anaphylactic reaction to any vaccine which has taken prior. So in that case, that's also not an absolute contraindication. So if he is allergic to aspirin or brufen, he can definitely take the vaccine. Okay, we have a caller, Rajiv from Bhagalpur. Rajiv, सवाल कीजिए अपना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है। नमस्ते डॉक्टर साहब। बोलिए। नमस्ते, सवाल कीजिए प्लीज।
मेरी माँ करीब 25 डेज बैक बीमार पड़ी थी, तो उनको मैंने दिखाया डॉक्टर से, तो सारे टेस्ट नेगेटिव थे। कोरोना का मुझे कुछ डाउट हुआ तो वो भी नेगेटिव था, वो भी करवाया था मैंने। तो डॉक्टर्स ने कुछ बोला कि इनको कोरोना सिम्टम्स का ही है, तो मेडिसिन वगैरह दिया, तो शी इज नाउ ओके, ठीक है वो। तो अभी क्या वैक्सीन दिलाने के लिए कुछ टाइम के बाद दिलाएं वैक्सीन, या कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? कुछ माइल्ड सा लग रहा था पहले। उनको कोविड हुआ था क्या? उनको क्या हुआ था? हेलो, पूछें चंद्रशेखर। कोविड हुआ था उनको? नहीं, कोविड नहीं हुआ था, नेगेटिव आया था। डॉक्टर भट्टाचार्य जी। हाँ, वैसे वो बता रहे थे उनका कोविड निगेटिव आए हुए थे, बट ट्रीटमेंट कोविड जैसे ही, सिम्टम्स कोविड जैसे थे, कोविड के जैसे इलाज भी हुए थे। तो वैसे जिसके कोविड होते हैं हम लोग बोलते हैं कि 8 हफ्ते बाद लेने के लिए, अप टू 8 वीक्स। तो ही कैन वेट, बिकॉज 80% में ही कोविड टेस्ट पॉजिटिव होते, 20% में निगेटिव होते। वो उनको तो सिम्टोमेटिक इलाज मिली हुई है, तो मेरे हिसाब से वो एक एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। अगर एंटीबॉडी है तो हो ही क्या बात। एंड अदरवाइज हम जैसे कोविड पॉजिटिव मानते हुए चले, एंड कुछ दिन, 1.5 महीने रुक के वैक्सीन लगा। ठीक है राजीव, आप कुछ दिन और रुक जाइए, और दरअसल मेरे ख्याल से 2 महीने आप रुक जाइए, उसके बाद आप वैक्सीन लगवाइएगा। और अब एक महत्वपूर्ण सवाल, 3 महीने की अब रिकमेंडेशन आ चुकी है। जी जी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पर, क्योंकि हम बिल्कुल डॉक्टर इस्लाम हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हैं, तो एक काफी महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे हम कर रहे हैं। डॉक्टर सुचंदा, आज की तारीख में लोगों को जो जानकारी मिल रही है वो मीडिया के जरिए मिल रही हैं, इंटरनेट के जरिए मिल रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और भटकाने वाली जानकारी ज्यादा सोशल मीडिया के, वो सोशल मीडिया में है, और काफी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और काफी लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। तो क्या कुछ आप कहेंगे डॉक्टर सुचंदा इस वक्त पर? हाँ जी, इसके लिए मैं थोड़ा कैटेगराइज करना चाहती हूँ। देखिए, जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं, जो लोग इंटरनेट बहुत यूज करते हैं, एक तो वो डॉक्टर गूगल को फॉलो करना बंद कीजिए। आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको कोई डिसीजन लेनी है, कोई ट्रीटमेंट लेनी है, आप जरूर अपने डॉक्टर के पास जाइए। ये इंटरनेट पढ़ के या व्हाट्सएप में ट्रीटमेंट किसी और का वो देख के फिर वो फार्मेसी ओवर द काउंटर दवाई लेके आके शुरू करना बिल्कुल ही गलत बात है। एक कैटेगरी पेशेंट ये होता है जो हमेशा, हमारे ओपीडी में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो डॉक्टर गूगल को पढ़ के आके सब ये सारे डिसीजन बना लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। दूसरी बात है जो मीडिया में तो हर तरीके से, मैं पहले भी शुरुआत भी वही बात से किया था कि मीडिया में बहुत कुछ दिखाते हैं, सच ही दिखाते हैं, ये नहीं बोल रहे सच नहीं, लेकिन वो आम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है। बार बार वही न्यूज आते हैं, इतने सारे चैनल से, इतने सारे चीजें हैं, स्ट्रीमलाइन तो है नहीं, हर कोई अपना न्यूज दिखाते रहते, तो बार बार रिपीटेशन में ये बहुत ही एक गंदा असर पड़ रहा है सबके दिमाग में। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इतने दिन में एक बार न्यूज ले लीजिए, आप पता कर लीजिए कितने आंख से है, कितना करना है, क्या है। ये दिन भर बैठ के टीवी देखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो देखना ज्यादा जरूरी है। आप किसी से बात करेंगे तो हमेशा आप कोशिश कीजिए ना कि हम कोरोना के बारे में बात नहीं करें, बात करें तो हम ये बात करें कि कोरोना से कितने लोग अच्छे हुए हैं। हम शुरू ही करते हैं बात करने में कि कोरोना में इतने सारे डेथ हो चुके हैं, कोरोना में इतने सारे हॉस्पिटल्स में ये ऑक्सीजन नहीं है, ये बेड नहीं है। हाँ, वो तो मुश्किलें हैं, बट उनका हल भी तो निकल रहे हैं। तो हम अपने आप ही चेंज करना पड़ेगा। हमें सबके साथ जब बात करेंगे तो हमें ऐसे बात करना पड़ेगा कि नहीं, इससे अच्छे भी हो रहे, ज्यादातर लोग तो अच्छे हो रहे, कुछ एक परसेंटेज लोग अच्छे नहीं हो रहे, लेकिन हम वो कुछ एक अच्छे परसेंटेज जो अच्छे नहीं हो रहे उसी में ही दिन भर बातें करते रहते, तो ये हमारा एक हैबिट फॉर्मिंग हो गया कि कोरोना निगेटिविटी में से अपने आप को ठीक करना सबसे बड़ी इलाज है। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा मीडिया यूज नहीं करे, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं करे। ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही, ये जो फॉरवर्ड होती रहती है, वो इतना ये
कहना चाहिए कि ये सब बंद करना चाहिए। मतलब हमें उतना इंफॉर्मेशन अगर सही कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कहीं एक माने हुए संस्था से ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहे तो वो देखना चाहिए, नहीं तो आधा से ज्यादा तो डरावने वाली चीजें, इससे बहुत ही असर पड़ रहा है। अच्छे भी है व्हाट्सएप या ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के वजह से आइसोलेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं। वीडियो कंसल्ट करके हम लोग एटलीस्ट कुछ तो बात कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही आप सोचिए अगर कोई हमारे पास वो स्मार्टफोन नहीं होते, हमारे पास वीडियो कंसल्ट करने का जरूरत ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का कोई माध्यम ही नहीं था, तो जो लोग आइसोलेशन में हैं उनके साथ तो बिल्कुल ही वो लोग तो और भी मतलब Yes, बीमार पड़ definitely. जाते थे। I mean, that is one thing to keep in mind as well. And और हमें अच्छे चीजों में फोकस करना चाहिए। Yes. लेकिन वो टेक्नोलॉजी के बुरे केस भी तो हैं, क्योंकि इतने सारे न्यूज़ फैला जाता है कि कोई फेक न्यूज़ से ज्यादा होती है, उनको तो वो अपने आप को ही समझ के पढ़ना चाहिए और अंदर उतना ही लेना चाहिए जो Certainly. हमें डिस्टर्ब ना करे। Certainly, तो certainly. मेरा And कहना तो ये है the important thing is to imbibe the right things and let what is driving you towards a negativity of any sort, be it fear or anger, anything that should be avoided to the extent possible. And that I guess is the biggest takeaway if one wants to stay mentally sound in these extremely trying times. I'd like to thank our guests at this point because they're completely out of time, but we do keep going on with this show every day as well, and you can ask your questions through the telephone line, that the number we keep flashing, and also on our channel's Facebook page, and keep joining us as well. Thanks बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अपना मनोबल आप बना के रखिए, क्योंकि मनोबल ही है जो आधी बीमारी को खत्म कर देगा। अगर मनोबल आपका कमज़ोर होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होगी और उसके बाद बीमारी भी आपको पकड़ने के लिए अपने आप आगे आ जाएगी। तो सबसे पहले अपना मनोबल आप मजबूत रखिए। और जैसा कि डॉक्टर सुचंदा बोल रही थी कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो सकारात्मक पहलू है इसका, कि काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं और कम लोग हैं जिनकी मौत हो रही है, ये सब आप देखिए, अपने मनोबल को मजबूत रखिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।